Very good evening to all of you. I see Ankit Maheshwari, Treasurer of Jaipur branch, welcomes you to this live webinar, which has been purposefully hosted in this pandemic situation. We are very fortunate to have Dr. Ashutosh Sharma ji with us, who is a physiotherapist, a MPT in neurology and psychometric disorder, CNDT, CMTC, COMT, certified manual therapist, and assistant professor in JNU Medical College and Hospital. He also has his own clinic where he is a chief physiotherapist at My Physio. And in this pandemic situation, sir, we are very fortunate to have you here with amongst our CA members. The entire community appears to be in a kind of a panic. Rather, I am myself on day 13 of a positive COVID-19 patient. So there are a lot of questions coming in my mind, and that is why Anilji chose me to come up on this forum and say that, what all the experience I faced and what all we should do as far as post recovery options are concerned. So before we formally begin with the session, I would want Anil Kumar Yadav ji, our chairman Jaipur branch, to give a welcome address before we proceed for this session and Q&A session exclusively for our members as far as how do they recover from this COVID situation. Thank you so much, Ankit ji. Very good evening to all of you. I see Anil Kumar Yadav. Welcome you all in today's webinar. Today we have with us Dr. Ashutosh Sharma sir, and doctors नहीं क्या कि कोरोना वॉरियर्स हैं सर, और सर कि लास्ट 6-8 मंथ से जो आप लोग सर्विस दे रहे हैं सोसाइटी को, उसके लिए थैंक्स। क्या कोई भी वर्ड्स हमारे पास नहीं है जिससे सोसाइटी आपको थैंक्स बोल सके। आप लोग जो सेवा कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, कि टच वुड सर, मतलब एक डॉक्टर्स और पुलिस ने जो सर्विस दी है लास्ट 6 मंथ से हम लोग देख रहे हैं, तो वो जो फीलिंग्स अंदर से आप लोगों को देख के हम भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और वी आर ट्राइंग कि हम भी हमारे मेंबर्स को कुछ दें। तो उसी सीरीज के अंदर सर व्हाट वी आर डूइंग कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं पूरे जयपुर के, जिनसे कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो हम जयपुर जो पूरी फैमिली है सीएस की, मैं बताना चाहूंगा सर, वी हैव 8,500 चार्टेड अकाउंटेंट एंड मोर देन 35,000 सीए स्टूडेंट। तो इट मींस कि अगर आप फैमिली मेंबर्स की, अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली होगी, मेंबर्स की बात करें मोर देन 13,000 मोर देन 1 लाख हो गए सर फैमिली के। 35,000 स्टूडेंट एंड 8,000 मेंबर्स। तो सर एक फैमिली में अगर 3 जने भी होंगे तो मोर देन 1 लाख है। तो वो सब पूरा लाइव के साथ ये रिकॉर्डिंग्स हम सबको प्रोवाइड करवाएंगे, तो दे ऑल विल बी गेट बेनिफिटेड फ्रॉम योर एडवाइस। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए टाइम निकाल के हमारे पास। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू यू अंकित जी। Thank you so much. I think Anil and Ankit, both of you, and Harpreet and Kuldeep definitely who approached me, and he told me to took some topic or regarding the situation. And I told definitely we'll take whatever the day. So I thought this is the weekend days and you will be also free, and I will get also some time so we can talk accordingly. Thank you so much. Thank you for overwhelming words. All of you are there. I think the session will be helpful for all of you. Thank you Anil ji, thank you Ashutosh sir. Once again, sincere thanks. इतना busy schedule में coming up and helping us out. We will moderate this session in 2 ways, sir. Number 1, we will be taking some question and answers, and in case you are comfortable telling us some exercises which we can do post recovery COVID-19, so we'll be glad to know these exercises also. So as of now, we have a lot of questions coming up, and when we told that we have a certified physiotherapist amongst us, and he's an experienced professional, so the entire community has a lot of queries. So I'll straight away, without wasting much time, I'll just straight away come to the basic questions in this in the session which we have already received from our members at large. So and anything which you feel like that then it needs to be added up, we'll be more than happy, sir. So the first question which I want to put it to Dr. Ashutosh Sharma is that how does COVID-19 affect our lungs, and what's the entire process like, sir? We want to understand, and how we can safeguard it from beginning only.
Basically, I think the internet and all the newspapers and media is giving a lot of details about the coronavirus and Right. all the things. But I want to highlight some points that is basically that we want to tell you how it affects the lung. यानी कि सबसे आप अगर देखेंगे जो कोरोना का जो नाम है बेसिकली दे गिवन दैट इज सार्स कोविड 2. सार्स का मतलब बेसिकली उन्होंने आपको जो मेंशन किया है दैट इज योर सीवियर क्या कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. तो जहां भी आप देखेंगे अगर आपकी रिपोर्ट हुई है जैसे आपने कहा शायद अनिल जी ने कहा कि वो अफेक्टेड रहे हैं या जो भी आपकी टीम में जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो आप देखेंगे जब भी रिपोर्ट आती है तो वहाँ पे एक चीज मेंशन होती है दैट इज योर सार्स कोविड 2 दैट इज अ कोविड फैमिली जो कि दूसरा वायरस है. पहले 2007 के अराउंड ये पहले आया था एंड इट केम अगेन टू अस. तो जो सार्स इसे नाम दिया गया है बेसिकली दे गिव बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. तो सबसे ज्यादा जो हम लोगों ने देखा है या फिर हम लोग जो हॉस्पिटल्स में ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को या जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं तो एडमिट होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसका जो अफेक्ट आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हमारे बेसिकली लंग्स हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें आ रही है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली होता क्या है जितना भी हम लोग ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करते हैं जो हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है राइट. तो अगर हम लोग कोई भी सांस ले रहे हैं इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं तो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन. तो होता क्या है बेसिकली जो आपको अगर अटैक करता है वायरस तो अब एवरी टाइम हम कह रहे हैं कि मास्क लगा के रखना है मास्क लगा के रखना है क्योंकि ये जो वायरस है सबसे ज्यादा अटैक ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पे करता है जो कि तुम्हारे लंग्स है. अगर तुम अफेक्ट हो जाते हो तो सबसे पहले वायरस क्या करेगा आपकी जो एल्वियोलाई हैं यानी कि टिनी एयर सैक्स हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं हवा भरने का काम करती है लंग्स के अंदर वो क्या करेगा उन्हें डैमेज करना शुरू करेगा. उसकी वजह से हमारा जो एल्वियोलाई वॉल है या कैपिलरीज हैं जो कि ब्लड को रेड ब्लड सेल्स की तरफ लेके जाती है यानी कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन को लेके जाती हैं आरबीसीज के थ्रू तो उसकी वजह से होता क्या है कि वो पर्याप्त मात्रा में बॉडी में नहीं पहुंच पाता है. अगर सपोज मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच रही है तो क्या होगा मुझे फटीग होगा मुझे बॉडी एक होगा मसल क्रैम्प मुझे आने शुरू हो जाएंगे. मेरे को अगर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मेरे ब्रेन के अंदर भी इश्यूज होंगे. तो ये इश्यूज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना जिसके अंदर ब्रेथलेसनेस हो सकती है हाइपोक्सिया हो सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी छोटी छोटी सांसें या फिर सांस में अटकना जैसी चीजें हो सकती है. तो इसकी वजह से क्या होता है आपकी जो वॉल है एल्वियोलाई वॉल है जहां पे हम लोग एयर लेते हैं वो थिक होना शुरू हो जाती है प्रोटीन की वजह से. प्रोटीन रिच प्लाज्मा जो होता है वो आपकी एल्वियोलाई थिक कर देता है और आप जो सांस है वो बेहतर तरीके से नहीं ले पाते हैं या आप ले रहे हैं तो आपका जो गैसिंग है वो कम हो जाता है. या हम कहें कि आपका जो SpO2 है आपने पढ़ा होगा या देखा होगा आपका जो SpO2 है यानी कि जो एयर है जो हमारे अंदर होल्ड करनी है हमें या जो ब्लड के अंदर O2 की मात्रा कितनी है यानी SpO2 जो आपका लेवल हम लोग चेक करते हैं आपने अगर देखा हो तो एक स्पायरोमेट्री है ना इजीली अवेलेबल है मार्केट में. तो स्पायरोमेट्री हमें SpO2 की मात्रा बताता है. ये SpO2 वो है कि आपकी O2 की क्वांटिटी कितनी है ब्लड के अंदर यानी हमारा सैचुरेशन कितना है. तो हमारा सैचुरेशन क्या होता है ड्रॉप होने लगता है और हमें इश्यूज आने लग जाते हैं. ऐसी सिचुएशन में हम लोग पेशेंट को सलाह देते हैं हमेशा एडमिट होने के लिए. लेकिन अगर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम पेशेंट्स को एक्सरसाइज जो भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं या उसे किस तरह से मैनेज किया जाए उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. तो हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है एक तो हाइजीन और एक जो हम लोग प्रिवेंशन के तौर पे हमने डेफिनेटली हम लोग हर बार बात करते हैं मास्क ताकि हमारे लंग्स को अफेक्ट ना करे और हमारे लंग्स बचे रहें. अगर हम इंटरनल फिजियोलॉजी में जाते हैं तो बहुत सारे बदलाव जैसे हम लोग स्वेलिंग आना या फिर लंग्स का एक तरह से हवा को रोक नहीं पाना अंदर जो टाइडल वॉल्यूम है आपका हवा को इकट्ठा करने का जो प्रोसेस है लंग्स का वो भी फेल हो जाता है और एंड ऑफ द डे कई बार लंग्स कोलैप्स भी हो जाते हैं. तो ऐसा वेरी करता है अलग अलग केसेस के अंदर. आशुतोष सर एक सॉरी आपको इंटरप्ट किया एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था जो आपने कहा SpO2 लेवल्स और मैं भी डे 1 से डे 13 तक अभी तक भी मैं वेबिनार में बैठने से पहले SpO2 लेवल्स मॉनिटर करके देखा. सो व्हाट आर द वार्निंग साइंस दैट दिस इज द लेवल 90 91 92 which is the level beyond which you should or below which you should think कि we should consult a doctor and go into a hospital or leave the home isolation or home quarantine thing which we are already doing. We cannot say कि आपका कि होम आइसोलेशन रहे या फिर होम क्वारंटाइन रहे. बेसिकली जो हमारी गाइडलाइन है जो कहती है कि SpO2 should be 99 और 98 that's the appropriate and the good SpO2 वैल्यू यानी कि आपका O2 ब्लड के अंदर अच्छा है बॉडी के अंदर अच्छा है.
लेकिन अगर ये 98 से कम जा रहा है और 92 से 95 के बीच में है, तो हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है और हम लोग उसे लगातार ऑब्जर्व करते रहते हैं विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर, और या फिर हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर को लगा के ही रखेंगे कंटिन्यूस, पेशेंट को ब्रीथ करने के लिए कहेंगे और उसे लगातार हम लोग कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर ये आपका 91 से नीचे जा रहा है और बहुत कम लग रहा है आपको और ब्रीथिंग इश्यूज आने शुरू हो गए, तो डेफिनेटली वी हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। हम लोग 91 से या 92 से नीचे डेफिनेटली हमें कंसल्ट करने की जरूरत है या फिर इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने की जरूरत है। ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू रहेगा, आपका पल्स ऑक्सीमीटर हमेशा लगा हुआ रहेगा। पल्स ऑक्सीमीटर मुझे लगता है हर किसी के पास अभी इस टाइम में होना चाहिए पैंडेमिक में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट नॉर्मल होता है और उसे पता भी नहीं होता और अचानक से प्रॉब्लम शुरू होती है, तो अचानक से किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। तो एटलीस्ट वी कैन नो कि मेरी पल्स रेट क्या चल रही है और मेरा सेचुरेशन क्या चल रहा है। अगर कोविड जैसा कोई इशू है तो डेफिनेटली उसके अंदर फ्लक्चुएशन होंगे और उसको फिर हम लोग मैनेज किस तरह से करते हैं वो हमें ध्यान रखना है। सर एक स्ट्रेट क्वेश्चन और आया अभी, वो ये आया कि ये जो ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई और डे 6-7 मेरे बहुत खराब निकले, मतलब एवरी मॉर्निंग आई हैव टू वेक अप और मुझे उस सांस को ऐसा लग रहा था कि देयर इज समथिंग यहाँ पे जो कि देयर इज सम हेवीनेस। सो माय क्वेश्चन इज कि हाउ डज फिजियोथेरेपी can help us recovering from these breathing disorders which still exist at day 13 also. I can't say that I am absolutely comfortable the way I was. I am still in some discomfort, not the kind of discomfort I was on day 6 or 7. So sir, how does physiotherapy can help us while we are recovering from this COVID-19 thing as far as breathing disorders are concerned? ओके, अगर हम बात करें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स की, जितनी भी मैंने बताया लंग्स को अगर इफेक्ट करेगा, तो फिजियोथेरेपी बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग कुछ एक्सरसाइज प्लान करते हैं जिन्हें हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज कहते हैं, राइट। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज डेफिनेटली दोनों में वर्क करती है। दोनों का मतलब प्री कोविड भी वो आपको काम करेगा लंग्स को हेल्दी रखने के लिए, और वो पोस्ट कोविड अगर आपको सिम्टम्स आ गए हैं, आप एडमिट रहे हैं या फिर आप होम आइसोलेटेड हैं या क्वारंटाइन है, तो भी वो आपके लंग्स को और इम्यूनिटी को बढ़ाने में, लंग को हेल्दी करने में हेल्पफुल रहेगा। तो एक सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसे हम लोग लंग्स के लिए करते हैं, उसके करने की वजह से आपके लंग्स का जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है, आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन यानी हवा को अंदर लेना, सांस लेना और सांस छोड़ना, उसकी जो गति है वो बढ़ जाती है और आपके लंग्स थोड़े से फंक्शनिंग हो जाते हैं। और अगर आप उसको जैसे मॉर्निंग इवनिंग कंटिन्यूस प्रोसेस में करते हैं तो क्या होता है, उसकी वजह से आपके लंग्स की फंक्शनिंग डेफिनेटली ओवरऑल इंप्रूव होती है। तो इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं और मोस्टली जो हॉस्पिटल सेटिंग्स हैं उसके अंदर हम लोग पेशेंट्स को अगर एडमिट है और फीवर है तो लगातार क्या कहते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी, जिसे हम लोग आप कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी या चेस्ट फिजियोथेरेपी वो अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर हम देखें तो सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं आपको, क्लैपिंग जो होती है, अगर आपने देखा है कभी भी हम लोग क्लैप करते हैं तो क्लैपिंग इज अ गुड थिंग। अगर हम लोग अपनी बैक पे या चेस्ट पे सिंपल क्लैप करते हैं तो जैसे आपको अगर कफ है या फिर थोड़ा बहुत ब्रीथिंग के अंदर इश्यू आ रहा है तो वो आपका चला जाता है, तो इसे हम लोग चेस्ट परकशन कहते हैं, राइट। तो इसी तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिन्हें हम लोग बेसिकली काम में लेते हैं टू ओवरकम द ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स एंड द प्रॉब्लम। एंड फिजियोथेरेपी इज द मेन पार्ट जो कि सबसे ज्यादा अभी वाइडली आप देखेंगे, मैंने कहा ना कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, तो रिहेबिलिटेशन में भी थेरेपिस्ट का रोल उतना ही बढ़ गया है। अब मैं आपको बता दूं कि जितनी डेथ आई है, मैंने रिपोर्ट की है डॉक्टर्स की, उनमें बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट भी शामिल हैं जो कि कोविड के अंदर एक्सपोज की वजह से क्या कहते हैं एक्सपायर हुए हैं और उसकी वजह से अफेक्ट हुए हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स, क्योंकि रोल ज्यादा है, पब्लिक को हील करना जरूरी है। अगर लंग्स इशू रहेंगे तो रिकवरी फेज नहीं आ पाएगा। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो रेगुलरली पेशेंट का चलता है, उसकी वजह से रिकवरी बहुत ही ईजी, इंडिपेंडेंस बढ़ जाती है, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ बढ़ जाती है आपकी। जैसे आपने बताया खुद में कि आपको प्रॉब्लम्स है, बैठते हुए भी एक बार हैवीनेस ही लगती है, तो वो उस तरह की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व आउट हो जाती है। सर, तो कोई एक्सरसाइजेज ऐसी जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप हमें और गाइड कर पाए? जैसे आपने एक चीज बताई कि क्लैप करना या लंग्स पे हम लोग थपथपाएं तो इट कैन गिव अस स्लाइट कंफर्ट। तो कोई अगर एक दो एक्सरसाइजेज जो आपको लगता है कि इन डेली रूटीन द मेंबर्स शुड इनकलकेट इन देयर डे टू डे अफेयर्स, तो सर कौन सी एक्सरसाइजेज हो सकती है? देखिए, दो चीजों का हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। दो चीजें होती हैं, पहला होता है निमोनिया और एक होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। यानी कि अगर आपको सिर्फ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है या ब्रीथिंग लेने में इश्यू आ रहा है
तो हम लोग इन एक्सरसाइजेज को प्लान करेंगे, राइट। अगर आपको लगता है कि आपको कफ आने लग गया है, ड्राई कफ है और बहुत ज्यादा हैवीनेस है और बहुत ज्यादा ब्रीथिंग इश्यू आ रहा है, डेफिनेटली हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें कंसल्ट करने की भी इमीडिएट जरूरत है, राइट। तो अगर मुझे सिर्फ रेस्पिरेटरी इश्यू फील हो रहा है या सांस में सिर्फ दिक्कत फील हो रही है, जो कि जैसा कि आपने बताया कि आपको है, आप रिकवर हो चुके हैं, लेकिन आपको हैवीनेस फील होती है, थोड़ा सा ब्रीथिंग इश्यू रहता है, तो ये एक्सरसाइज हम रेगुलरली अपने शेड्यूल में डाल सकते हैं, राइट। तो मैं कुछ एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, तो वो आप क्या करेंगे, अपने प्लान में डाल लेंगे, और ईच एंड एवरीवन आइदर हेल्दी लंग्स और आइदर अफेक्टेड विद द कोविड-19 बोथ दे कैन यूज, राइट। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज अगर हम बात करें, तो जो सबसे इजीली अवेलेबल चीज है हमारे घर में वो बैलून होता है, राइट। बैलून हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है, तो आप क्या करेंगे, एक बैलून लेंगे। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज विल टेल यू लेटर, इसे मैं दूसरे तरीके से भी करके बताऊंगा। तो बैलून जो है वो इजीली अवेलेबल है, यू कैन कीप इन योर पॉकेट ऑलवेज। आपको क्या रखना है अपनी पॉकेट में या अपने बैग में 2-3 बैलून हमेशा रखने हैं, राइट। अगर आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे तो मैं बता देता हूँ, आपकी जो एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ वो भी अच्छी रहेगी, मसल्स अच्छे से काम करेंगे, फटीग नहीं होगा, थकान नहीं होगी, तो उसके लिए हमें ये करना जरूरी है। तो व्हाट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, 3 ब्रीथ लेने हैं बेसिकली। 3 ब्रीथ का मतलब है हम लोग फर्स्ट जो है बैलून को फुलाने के लिए पहला ब्रीथ लेंगे, फिर हम उसे होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए, राइट। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से उस ब्रीथ को लेंगे, फिर से हम उसे होल्ड करेंगे, देन अगेन विल डू। ये जो ब्रीथ होगा ये लंबा जा सकता है। लंबा जाने का मतलब है कि आप जो सांस छोड़ रहे हैं यानी कि एक्सहेल कर रहे हैं वो लंबा होगा। लंबे का मतलब आप 1 से 3 सेकंड तक उसे ले सकते हैं। तो लंबा जब भी आप छोड़ेंगे उसे, तो आप देखेंगे कि पहले राउंड के अंदर हम लोग 1 2 3 अगर काउंट करते हैं तो दिस इज 1, तो 1 2 3 विल बी 3 सेकंड। 3 सेकंड तक आप एक्सहेल करेंगे और बैलून को फुलाएंगे। देन देयर विल बी सेकंड रिपीटेशन, अगेन वी विल डू, दिस इज 1 2 3 सेकंड, अगेन एक्सहेल, देन हम लोग ब्रीथ इन कर लेंगे, देन विल एक्सहेल इट अगेन, राइट। तो दिस इज द थर्ड स्टेप प्रोसेस, यानी हमें क्या करना है, बैलून के अंदर 3-3 सेकंड से एक्सहेल करके हवा भरनी है, लेकिन सांस लेना जरूरी है, राइट। तो बिना बैलून के हम लोग कैसे करेंगे, सपोज जो बैलून नहीं ले पाते हैं या नॉर्मली करना चाहते हैं, इसे हम लोग पर्स लिप ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। पर्स लिप का मतलब है कि मैं अपने होठों को गोल करूंगा और जैसे हमें कैंडल को ग्लो करना है या हमें सीटी बजानी है, तो ये वाला प्रोसेस मुझे करना है। तो पहले मुझे क्या करना है, मुझे 1 to 2 सेकंड के लिए ब्रीथ को इन करना है, देन 1 to 4 सेकंड के लिए मुझे ब्रीथ को आउट करना है, राइट। तो 1 to 2 सेकंड के लिए मैं क्या करूंगा, ब्रीथ को इन करूंगा, देन यानी मेरे फेफड़ों के अंदर जितनी भी हवा भरी हुई है मेरे लंग्स के अंदर, मुझे पूरी एक्सहेल करनी है, पूरी हवा को बाहर निकालना है। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। जो अगर वैसे हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहें तो पर्स लिप ब्रीथिंग कहा जाता है। पर्स लिप का मतलब हम लोग होठ का जो शेप है वो गोल बनाते हैं, जिसे हम लोग पाउट कहते हैं बेसिकली आजकल की लैंग्वेज में। तो हमें पाउट बनाना है और एक्सहेल करना है, और इनहेल करने के लिए हमें नोज या माउथ वॉट एवर यू कैन यूज, 1 to 2 सेकंड इनहेल रहेगा और जो एक्सहेल है वो लंबा होगा 1 to 4 सेकंड, यानी डबल ऑफ इनहेलेशन टाइम। अगर आपने 1 to 3 सेकंड कर लिया है तो 1 to 6 सेकंड तक आप एक्सहेल कर सकते हैं। यानी जितना आपने अंदर एयर स्टोर किया उससे ज्यादा आप बाहर निकालेंगे, तब जाके आपके लंग्स नेक्स्ट टाइम पे एक अच्छी एयर एंट्री लेंगे, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। कंफर्टेबल? नाउ मूव टू द सेकंड एक्सरसाइज। अगर हम सेकंड एक्सरसाइज की बात करें तो वी कॉल्ड इट डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या होती है बेसिकली, यानी एक चीज समझिए डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज से पहले कि मुझे सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है मेरा डायफ्राम। डायफ्राम मेरा रिब केज जहाँ खत्म होता है, जहाँ पे मेरी पसलियां खत्म होती है या रिब केज खत्म होता है, उसके नीचे की एक मसल होती है, राइट। तो ये मसल जो है मुझे सांस लेने में हेल्प करती है। जब भी मैं सांस लेता हूँ तो मेरी ये मसल मुझे क्या करती है, स्टमक और रिब्स को अलग करती है और मुझे सांस लेने यानी लंग्स को एक तरह से ऊपर उठाती है और मुझे हेल्प करती है सांस लेने में। नहीं, अगर सपोज मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ
सपोज मैं ऐसे स्लाउट बैठा हुआ हूँ और मुझे कहा जाए सांस खींचिए, तो मैं नहीं खींच पाऊंगा। अगर मुझे ऐसे कहा जाए सांस खींचिए, तो आई कैन इजीली टेक द ब्रीथ, राइट। तो दिस इज द थिंग। तो मुझे मेरे डायफ्राम को क्या करना है, अपने एक हाथ से, मुझे दोनों हाथ सामने लेने, एक हाथ को मुझे चेस्ट पे रखना है और एक हाथ को मुझे डायफ्राम पे रखना है। डायफ्राम कहाँ होगा, जहाँ पे मेरी रिब्स खत्म हो रही है, पसलियां खत्म हो रही है, उसके जस्ट नीचे हाथ रखना है। और मुझे ना सांस लेनी है, इनहेल करना है 1 to 5 सेकंड के लिए, और मुझे उसी टाइम के लिए मुझे क्या करना है, आउट करना है। लेकिन मुझे याद रखिए, जब मैं अगर इसे इनहेल कर रहा हूं तो मैं स्लो इनहेल करूंगा, मैं डीप नहीं जाऊंगा। डीप का मतलब समझिए, ये डीप है, ये डीप नहीं करना है मुझे स्लो इनहेल करना है और एक्सहेल मुझे ज्यादा करना है, राइट। तो जब मैं इनहेल कर रहा हूं तो मेरा जो एब्डोमेन है वो मूव करेगा अपर की तरफ, यानी कि जब मैं पेट को फूलेगा, जब मैं सांस लूंगा, मेरा चेस्ट मूव नहीं करेगा, है ना। ठीक है, तो मैं सांस लूंगा, मेरा एब्डोमेन उठेगा और मैं फिर उसे 2 सेकंड के बाद धीरे से, यानी कि डीप नहीं जाऊंगा, और 1 to 5 सेकंड के लिए एक्सहेल कर दूंगा। ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो पीरियड है, ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इसे डीप ले लेता हूं तो ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो जाएगी, जो कि मुझे कई कंडीशंस में नहीं करनी होती है। सपोज मुझे अस्थमा है तो मुझे डीप ब्रीथिंग नहीं करना होता है, मुझे डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग करना होता है, शैलो ब्रीथिंग करना होता है। अगर मुझे सीओपीडी है, यानी कि मुझे ऑलरेडी खांसी और कफ रहता है पहले से, कोविड पॉजिटिव हूं या नहीं हूं, और मुझे पहले से ही क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, लंग्स का प्रॉब्लम रहता है, तो मैं हैवी ब्रीथ नहीं करूंगा, ये मुझे ध्यान रखना है, राइट। तो मुझे डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग इसके लिए अलाउ है, जो नॉर्मल भी है और जो सीओपीडी है। जबकि जो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा डीप ब्रीथिंग, वो सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए अलाउ है, राइट। तो हम लोग एक हाथ चेस्ट पे रखेंगे और एक हाथ हम लोग एब्डोमेन पे रखेंगे, जस्ट बिलो द डायफ्राम पे रखेंगे, सॉरी, जस्ट बिलो द रिब्स, जहां पे हमारी खत्म होती है। विल टेक द ब्रीथ, डीप नहीं जाएंगे, एंड एक्सहेल। यहाँ देखेंगे मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है, मैंने रिब केज को उठा दिया है। मुझे ये रिब केज को नहीं उठाना है, मुझे क्या करना है, एब्डोमेन को फूलते हुए महसूस करना है। तो मेरा जो पेट है वो फूलेगा, जो कि डायफ्राम होगा बेसिकली, और उसे फिर मैं ब्लो आउट करूंगा और रिलैक्स कर दूंगा। दिस इज योर सेकंड एक्सरसाइज, वी कॉल्ड इट डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज। मेरे पास इसके कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, विल शेयर यू दैट आल्सो। उसके अंदर मैंने कोट किया हुआ है, तो लेक्चर सुनने के बाद में अगर वो देखेंगे तो वो इजीली अंडरस्टैंड रहेगा, याद भी रहेगा, तो यू कैन कोरिलेट विद दैट, राइट। थर्ड एक्सरसाइज जो होती है बेसिकली हमारी, वो होती है आपकी थोरैको एब्डोमिनल एक्सरसाइज। थोरैको एब्डोमिनल का मतलब है मुझे थोरैक्स प्लस एब्डोमेन दोनों को काम में लेना होता है, लेकिन मुझे इसके लिए एक टावल की जरूरत होती है हमेशा। एक टावल की जरूरत क्यों है, या तो मैं क्या करूंगा, मेरे दोनों हाथों को ऐसे बैंड करके भी काम में ले सकता हूँ, प्रोसीजर वी गोइंग टू डिस्कस, या मैं एक टावल काम में ले लूँ। मैं दोनों ही मेथड बताने वाला हूँ, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ जो है, अपने दोनों हाथों को अपने स्टर्नम पे रखेंगे। ये स्टर्नम क्या होता है, जहां मेरा आपका जो बीच वाली हड्डी है और जो यहाँ खत्म होगी, तो आपको एक गड्ढा सा फील होगा यहाँ पर, जहां पर रिब्स आपकी घूमी हुई है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका स्टर्नम होता है। तो हम अपने दोनों हाथों को यहाँ पे स्टर्नम पे प्लेस कर सकते हैं, और स्टर्नम पे प्लेस करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ बैंड करेंगे, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, गहरी सांस लेंगे। गहरी का मतलब डीप ब्रीथिंग तक जा सकते हैं। डीप ब्रीथिंग का मतलब 1 to 5 सेकंड की ब्रीथिंग हो सकता है, या 1 to 3, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट, जितना वो इनहेल कर सकता है, राइट। तो हम लोग थोड़ा डीप ब्रीथिंग में जाएंगे, और जैसे ही हम एक्सहेल करेंगे तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथ से जो प्रेशर है उसको अंदर की तरफ दबा देंगे, है ना। जो अपना एब्डोमेन है उसको अंदर की तरफ पुश कर देंगे, राइट। तो लुक एट मी, हम लोग क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, एंड जब एक्सहेल आउट करेंगे 1 to 5 सेकंड तक, आई कैन ब्रीथ आउट विद द नोज और मोड द माउथ, डजंट प्रॉब्लम। इसके अंदर हमें ऐसा नहीं है पाउट बनाना है या नोज से छोड़ना है। थोरैको एब्डोमिनल के अंदर हम लोग नाक से या मुंह से, दोनों से छोड़ सकते हैं। हमें ब्रीथ आउट करना है 1 to 5 सेकंड कंटिन्यूअस, और मुझे जब ब्रीथ आउट में एक्सहेल कर रहा हूं तो मुझे मेरे एब्डोमेन को थोड़ा सा प्रेशर दे देना है, जो कि पूरा एक्सहेलेशन में मेंटेन रहेगा, राइट। तो दिस इज योर थर्ड एक्सरसाइज। इसे मैं टावल के हेल्प से भी कर सकता हूँ, ओके। टावल को मुझे क्या करना है, एक रोल वो बना लेना है, लंबा टावल लेना है, एंड आई हैव टू पुट टू माय एब्डोमेन, यानी कि जहां मेरी रिब्स खत्म हो रही है वहीं पे मैं उसे प्लेस करने वाला हूँ।
ओके, लेट मी टेक इट बैक, राइट, इट इज विजिबल। फिर मैं इसे क्या करूंगा, क्रॉस कर दूंगा, राइट। तो मेरी रिस्ट यहाँ खत्म हो रही है, मैंने होल्ड कर लिया है। अब मैं फिर से सांस लेने वाला हूँ, इनहेल फॉर 1 to 3, 1 to 5 एंड उसके बाद मैं एक्सहेल करने वाला हूँ 1 to 5 सेकंड के लिए, राइट। तो 1 is the 1 to 3 मैं इनहेल करूंगा और जैसे ही मैं एक्सहेल करूंगा मैं क्या करूंगा, इस टॉवल को कस के मेरे पेट पे दबा दूंगा, है ना, और साथ में एक्सहेल भी करता रहूंगा। तो और मैं थोड़ा क्लाउड भी हो सकता हूँ, राइट। तो एक बार मुझे इनहेल करना है 1 to 3 या 1 to 5 सेकेंड और मुझे एक्सहेल करना है 1 to 5, साथ में या तो अब मैं हाथ से प्रेस करूंगा या मैं टॉवल से प्रेस करूंगा। तो दिस विल बी योर थर्ड एक्सरसाइज। तो हमने डिस्कस किया पल्स विद ब्रीथिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग और थोरैको एब्डोमिनल ब्रीथिंग। अभी एक जो चीज है मैं सिंपली बताना चाहता हूँ, ये तो साइंटिफिक मेथड्स हैं एक्सरसाइज के। सपोज मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी, तुम सिंपली बैलून को फुलाओ, सांस लो और बैलून फुलाओ, है ना। दिस इज द सिंपल वन एक्सरसाइज। सेकंड मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक पानी का गिलास लेके उसके अंदर एक स्ट्रो डालूंगा, राइट। स्ट्रो डालने के बाद में मुझे सांस ले लेनी है नॉर्मल जो मैं ले रहा हूँ, उसके बाद मुझे सिर्फ एक्सहेल करते रहना है, लाइक आप देखेंगे मेरी लंग्स की एयर खत्म नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने लंग्स को और खाली कर सकता हूं, तो मैं इस प्रोसेस को करता रहूंगा, है ना। मुझे क्या करना है, बंद नहीं करना है। तो मैं नॉर्मल सांस लूंगा, उसके बाद में मैं इसे ये एक ही ब्रीथ में होगा, कंटिन्यूस ब्रीथ में होगा। ये आप अपनी सिपर या बोतल के साथ भी कर सकते हैं, जिस बोतल के अंदर स्ट्रो आता है या जो ऑफिस में आप ले जाते हैं, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट। तो ऑफिस के लिए मेरे हिसाब से सिपर बोतल्स विल बी बेटर। उसके अंदर आप क्या करेंगे, पानी की क्वांटिटी कम करेंगे और उसे आप काम में ले सकते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। ये बेसिक एक्सरसाइज है, जिसको ये मेथड समझ में ना है या करने में दिक्कत आ रही हो या नहीं कर पा रहे हो, तो ये मेथड भी हेल्पफुल रहेंगे। द लास्ट इन द नॉट द लिस्ट, जो कि बहुत ही जरूरी है मुझे लगता है, एज ए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से हमें अगर फाइट करना है तो एक डिवाइस आता है जिसे हम लोग रेस्पायरोमीटर कहते हैं। अगर आपने देखा है, इसे हम लोग रेस्पायरोमीटर कहते हैं। बिल्कुल सर, मैं भी यूज कर रहा हूँ इसको। डेफिनेटली। तो रेस्पायरोमीटर या इंस्पायरोमेट्री, जो भी हम लोग दोनों चीजें से कह सकते हैं, ये काफी हेल्पफुल है। अगर आप मान लो ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, या आप बेड पे लेटे हुए हैं तो आप बेड रिटर्न है, ये तो हो गया जो एक्टिव पर्सन है या जो पहले कर सकता है, जो हेल्दी रखना चाहता है, या फिर जो थोड़ा बेटर हो गया है लेकिन मैं इतना बेटर नहीं हूँ, मैं ताकत ही नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं ना तो एब्डोमेन दबा पा रहा हूँ, ना इनहेल अच्छे से कर पा रहा हूँ, और मैं तो बेड रिडन हूँ, रेस्ट ज्यादा कर रहा हूँ, या मैं सिटिंग कर लेता हूँ लेकिन मैं अपने लंग्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाल पा रहा हूँ। तो इसके अंदर 3 कैटेगरी जो आपकी दी हुई है, इसको आप देखेंगे तो देयर इज 600 सीसी रेड वन, 800 सीसी एंड द आपका 1200 सीसी। तो आप देखेंगे 600, 900 एंड 1200, सॉरी। तो जो ये तीनों है, ये आपका प्रेशर लंग्स का आप कितना एक्सहेल कर सकते हैं, यानी कितना फेफड़ों से हवा बाहर निकाल सकते हैं। तो स्पायरोमेट्री मोर यूजफुल, और ये बहुत ही चीपर आता है। इट इज नॉट कॉस्ट मोर देन 200 और 300। और मुझे लगता है जिनको भी प्रॉब्लम हुई है या नहीं भी हुई है, तो हमें एज ए ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज के लिए, ब्रीथिंग डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए इसे हम लोग काम में ले सकते हैं। इसे काम में लेने का तरीका सबसे सिंपल है। आप जो आपका जो पाइप है जिससे हम लोग इनहेल या एक्सहेल करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, सीधा होल्ड करेंगे और हम लोग एक लंबा ब्रीथ लेंगे जो कि डीप ब्रीथ हो सकता है ना। तो मैं आपने देखा फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल एंड द थर्ड बॉल। अब ये जो बॉल उठती है ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो आप इतना फोर्स भी अपने आप पे नहीं लगाएंगे कि आपका एकदम से है ना लंग्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आए। आप देखें, अगर आपसे इतनी ही पावर लग पा रही है कि आप एक बॉल का टारगेट कर रहे हैं, तो आप एक के लिए ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, राइट। जब एक बॉल कंप्लीट हो जाए तो फिर आप शुरू करें सेकंड बॉल की ट्रेनिंग के लिए। फिर जब आपको लगेगी आप थोड़ा कंफर्टेबल है, आपकी ब्रीथिंग इश्यू हो गई, इजी हो गई है, तो यू कैन गो फॉर द डीप ब्रीथ। We have to hold 1 to 2 seconds or 3 seconds, depend on the patient situation और the condition। और इसे हम लोग लगातार 5 to 10 टाइम कर सकते हैं। ये सीधा था, ये उल्टा हो गया है।
अभी बॉल हमारे पास उल्टी हो गई है, ये 600 है, ये 900 सीसी है और ये 1200 सीसी है, यानी कि आपका जो प्रेशर है वो रेड पे कम, येलो पे उससे ज्यादा और ब्लू पे उससे ज्यादा आएगा, राइट। अभी हमें क्या करना है, हमें इनहेल ब्लो करना है। ब्लो करूंगा, ये क्या होगा, बॉल आपकी उठेगी। इनहेल से आप नहीं उठा पाएंगे। इनहेल हमें क्या करना है, ब्लो करना है, यानी एक्सहेल अगर हम लोग करते हैं तो फिर इसकी जो है आपका बॉल का मूवमेंट मिलेगा। इन प्रीवियस वन वी हैव टू इनहेल, राइट। हमें क्या करना है, इनहेल करना है। तो मुझे लगता है थोड़ी गड़बड़ हुई है, तो वी हैव टू सी दैट जब हम इसे सीधा रख रहे हैं तो हमें इनहेल करना है। इनहेल के अंदर हमें देखना है कि हम लोग कितना इनहेल कर पा रहे हैं। तो द रेड बॉल और द येलो बॉल और द ब्लू बॉल, तो जो भी हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं तो उसी के हिसाब से बॉल उठेगी, दैट विल बी इनहेलेशन, राइट। और अगर हम लोग इसे उल्टा कर देते हैं तो वो रहेगा तुम्हारे ब्लोइंग या एक्सलेशन के लिए या एक्सपिरेशन के लिए, राइट। तो ये हम लोग जो है रेगुलरली काम में ले सकते हैं। द एंड एक्सरसाइज विल बी द डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग के अंदर मैं 2-3 वेरिएशन ऐड करना चाहूंगा। डीप ब्रीथिंग बेसिकली क्या होगा आपका, आप जितनी गहरी सांस ले सकते हैं उतनी गहरी सांस लेंगे और उसके बाद जितना ब्लो आउट कर सकते हैं उतना ब्लो आउट करेंगे, राइट। इसके अंदर हमें नोज और माउथ दोनों को काम में लिया जा सकता है। ब्लो आउट के लिए नोज और माउथ दोनों को काम में लिया जा सकता है। इसके अंदर हमें किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब हम लोग इसे इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं तो हमेशा डीप रहेगा, वो एंड लिमिट तक जाएगा जो कि पीक होगा। अगर आपको इसमें खांसी वगैरह आती है तो आप उससे थोड़ा अपनी लिमिट देखें कि मुझे एक लिमिट के बाद खांसी आ रही है, तो उसे आप कम करें, उसमें ज्यादा प्रेशर ना लें, वरना थोड़ा सा खांसी वगैरह आपको कंटिन्यू हो सकती है। दिस इज द आई थिंक 5th वन या 4th वन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज योर हफिंग ब्रीथिंग। हफिंग ब्रीथिंग का मतलब होता है कि जिन लोगों को खांसी रह रही है या कफ रह रहा है, ये उनके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। सपोज वो अपना कफ जो है वो निकाल नहीं पा रहे हैं और जो उनका कफ लगातार जमा हुआ है, तो लोग स्टीम कंटिन्यू ले सकते हैं। स्टीम आपको पता ही है नेचुरल रेमेडी है और अभी सब लोग काम में भी ले रहे हैं। स्टीम से क्या होगा, थोड़ा सा जो सिक्रेशन है वो आपका लूजन अप हो जाएगा, ठीक है। लूजन अप होने के बाद आप क्या करेंगे, आप इनहेल करेंगे 1 to 5 सेकंड के लिए, 1 to 3 सेकंड के लिए, और जैसे ही ब्लो आउट करेंगे तब आप 3 वर्ड काम में लेंगे, दैट इज हा हा हा, राइट। दैट वो खांसी के रूप में आपको बाहर निकलेंगे। मैं करके बता रहा हूं, जस्ट लुक एट मी, राइट। तो ये आपको क्या करेगा, एक तरह से खांसी, या हम लोग इसे हफिंग कहते हैं। हफिंग का मतलब होता है हम लोग गले का, जो हमारे यहाँ पे एक ग्लोटिस होता है, उसे ओपन करके और फिर ब्रीथ आउट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो स्पुटम है या कफ है वो बाहर निकल जाता है एकदम से, या जो गले के अंदर अटका हुआ है, चिपका हुआ है, वो सिक्रेशन जो है आपका आउट होता है। तो आपको करना क्या है, इनहेल करना है और एक्सेल में आपको 3 वर्ड हा 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 यूज लेना है या हा 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 यूज लेना है, जो भी आप चाहें काम में ले सकते हैं। तो अभी जो मेन बात आती है वो आती है कि हमें रिपीटेशन कितने करने हैं। तो मैं रिकमेंडेड करता हूं कि आप 3 to 5 सेट्स कर लें। 3 इज द मिनिमम वन, 5 इज द मैक्सिमम वन, अगर आप सारी एक्सरसाइज करते हैं। अगर एक ही एक्सरसाइज को आप कर रहे हैं जो आपको ऊपर लगता है, सपोज हफिंग ही कर रहे हैं, डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो आप उसके थोड़े ज्यादा सेट्स भी कर सकते हैं, 5 to 7 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन फॉलो सम प्राणायाम ऑल्सो, जो कि काफी पॉपुलर है, आपको पता है। अगर हम लोग एक नाक से सांस ले रहे हैं अंदर डीप ब्रीथ करके और दूसरे से छोड़ रहे हैं, या आप सिंपली एब्डोमेन को, पेट को पिचका के जो कपाल भाती वगैरह करते हो, उस तरह की एक्सरसाइजेज भी आप कर सकते हो, अगर आप केपेबल हो तो। नहीं हो तो आप साइंटिफिकली जो अप्रूवन एक्सरसाइज है जो मैंने आपको सिखाई है, ये आप कर सकते हैं, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। काफी इंसाइटफुल था आशुतोष सर, क्योंकि मैं खुद एस्थमेटिक हूँ और मुझे भी आज ही पता चला कि ज्यादा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एस्थमेटिक पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए। सो काफी इंसाइटफुल था। एक छोटा सा सवाल सर यहाँ पे और आता है, और वो ये है कि सर ये तो हो गई रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस की बात। अब जो जनरल वीकनेस आई है, जैसे सर अभी भी वॉशरूम जाके आता हूँ और बैठता हूँ तो 10-15 मिनट बैठा ही रहता हूँ, मतलब मैं कुछ अभी उस पोजीशन में ही नहीं आया हूँ कि मैं कुछ बहुत ज्यादा कुछ कर पाऊँ उसके बाद। तो ये जो जनरल वीकनेस है सर, इससे कैसे ओवरकम किया जाए?
ओके, तो लेट मी टेल यू द थिंग्स। जैसे हमने बात की कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज सारी की सारी ऐड कर देनी है। अगर मुझे अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी मेरी बॉडी को, तो मेरी जो ब्लड सेल्स है उसके अंदर अच्छा ऑक्सीजन जाएगा और मेरी मसल्स को अच्छी एनर्जी मिलेगी बिकॉज ऑफ द गुड ऑक्सीजन। अगर वो नहीं मिल रही है तो मुझे कहीं कहीं प्रॉब्लम रहेगा, राइट। तो पहले तो मुझे सबसे पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। सेकंड थिंग, अगर मैं चाहूँ कि नेचुरली मेरा ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट बढ़े, तो मुझे वॉकिंग रेगुलर कर देना है, राइट। वॉकिंग का मतलब है कि मुझे अपने शेड्यूल के अंदर, कि मैं घर पे काम कर रहा हूँ वो वाली वॉकिंग नहीं, यानी कि मुझे एक शेड्यूल बनाना है कि या तो मेरी रूफ के ऊपर, या मैं छत पे चला जाऊं, या मैं गार्डन में चला जाऊं, या फिर मैं अपनी कॉलोनी में अराउंड द होम एक प्लान कर लूं और मैं 10 से 15 मिनट की नॉर्मल वॉकिंग शुरू करूं जो कि रेगुलर हो। यानी कि मॉर्निंग इवनिंग हो सकती है, दैट इज मच बेटर। अगर मैं एक टाइम भी करूंगा तो बेटर रहेगा। तो दिस इज टाइप ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज। मैं ट्रेडमिल और साइकिलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही आप रेगुलर वॉकिंग शुरू करेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व होगा और आपका रेस्पिरेशन नॉर्मल आएगा। साथ में आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज ऑलरेडी ऐड कर दी है। अब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास साइकिल है, आइदर स्टैटिक साइकिल और द आपकी कंटिन्यूस साइकिल जो कि हम लोग बाहर राइड करते हैं, तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं। किसी घर में अगर ट्रेडमिल है तो 2 और 3 की स्पीड में या 4 स्पीड में हम लोग धीरे धीरे ट्रेडमिल पे भी जा सकते हैं। लेकिन हमें इनिशिएट जो करना है वो वॉकिंग से इनिशिएट करना है, राइट। उसके अलावा जो जनरल वीकनेस के लिए दूसरी चीज आती है, दैट इज अ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज क्या होती है? स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बेसिकली क्या होती है कि आपके जो बॉडी पार्ट है, यानी कि अपर लिम्ब, आप हम डिवाइड करते हैं अपर हिस्सा और लोअर हिस्सा, तो इसे हम लोग अपर लिम्ब कहते हैं। आपका हेड, नेक और जो हाथ हैं दोनों ये अपर लिम्ब के अंदर आते हैं। लोअर लिम्ब के अंदर आपका पैर और जितने भी जो है कमर से नीचे का हिस्सा है वो आता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर मैं ऑफिस के अंदर हूँ और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे करूंगा, या मुझे तो टाइम नहीं मिलता, या मेरे घर पे तो जिम नहीं है, क्या मुझे डंबल्स या वेट खरीदना पड़ेगा? तो वैसा नहीं है, वैसा करने की जरूरत नहीं है। एक मैं चीज दिखाने वाला हूँ, इसे हम लोग थेरा बैंड कहते हैं। एक रबर बैंड आता है, अगर आप देखेंगे मेरे हाथ में है, सिंपल एक रबर की ट्यूब आती है और एक बैंड आता है ना। इसे हम लोग रेजिस्टेंस बैंड या स्ट्रेंथ बैंड भी कहते हैं, और बेसिकली इसका जो साइंटिफिक नेम है इसे हम लोग थेरा बैंड कहते हैं। ये एक रबर की ट्यूब होती है, इसके जरिए आप सारी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको सारी बॉडी की कुछ एक्सरसाइज तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, लेकिन मैं आपको जैसे कि मैंने बताया कि लंग्स है, तो लंग्स अपर लिम्ब का हिस्सा है, तो मैं अपर लिम्ब की जैसे 2-3 एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, वो आप इस बैंड से कर सकते हैं। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर पे, या यू कैन ऑर्डर द ऑनलाइन। और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होती, कॉस्ट अराउंड 200-300 सेम, जो कि आपकी स्पायरोमेट्री और इसकी कॉस्ट है ना। और इसके जरिए मैं अपनी अपर बॉडी की सारी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, राइट। तो आई एम गोइंग टू शो सम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नाउ, जो कि 2 से 3 मिनट की होगी, वो आप रेगुलरली एड ऑन कर सकते हैं। और ये बैंड आप ऐसा है कि फोल्ड करके पूरा का पूरा अपने बैग या पॉकेट में डाल के अपने ऑफिस में भी ले जा सकते हैं। तो सपोज आप काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव कर लेना चाहिए, लगातार सिटिंग हो गई है 3-4 घंटे की, तो मैं अपने बैंड को ओपन करूंगा और मैं कुछ एक्सरसाइजेस कर लूंगा, जो कि मुझे बेनिफिशियल रहेगी दोनों के अंदर, जनरल बॉडी वीकनेस को हटाने में, लंग कैपेसिटी को या फिर चेस्ट एक्सपेंशन को बढ़ाने में, और ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ को इंप्रूव करने में। तो अगर मैं कहूँ तो सबसे पहली एक्सरसाइज में क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों हाथ अपने सामने रखूंगा और मेरा फिस्ट जो है इस तरह से रहेगा, बैंड को इस तरह से पकड़ेगा, और मैं क्या करूंगा, बैंड को खींचते हुए चेस्ट की तरफ ले जाऊंगा। मेरे हाथ स्ट्रेट रहेंगे और मैं सीधा स्ट्रेट हाथों को वापस ले आऊंगा। अब अगर बैंड को मैं और पास से पकड़ता हूँ तो ये और टाइट हो जाएगा, अगर मैं दूर से पकड़ता हूँ तो ये लूज रहेगा, राइट। मैं इसे पकड़ूंगा, स्ट्रेच करूंगा, मेरी चेस्ट की तरफ ले जाऊंगा और फिर से धीरे धीरे वापस ले आऊंगा। ये बहुत ही अच्छी चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज है, यानी मेरी जो मसल्स हैं जो कि इस तरह से रहती हैं, तो उसको ओपन अप करने के लिए मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। साथ में अपर बैक, जो पीछे की पीठ है, इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी मैं ये कर सकता हूँ। द सेकंड एक्सरसाइज विल बी, मैं अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाऊंगा, दोनों हाथ ऊपर ले जाके मेरी ये पोजीशन देखिए, आप बैंड मैंने इसी तरह से पकड़ा हुआ है, जो ऐसे था इसी को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, राइट। ऊपर ले जाने के बाद में मैं इसे सीधा खींच दूंगा और अपने शोल्डर के पीछे तक लेके आऊंगा। शोल्डर तक पीछे तक लाने के बाद में इसे धीरे धीरे ऊपर लेके जाऊंगा। इसमें एक चीज मुझे जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि मैं बैंड को कंट्रोल करूंगा, राइट। यानी बैंड को ऐसे झप से नहीं छोड़ने दूंगा, क्योंकि मैं एक स्ट्रेच बैंड को खींच रहा हूँ तो इलास्टिक की तरह वापस जाएगा, तो मुझे जाने नहीं देना है। मुझे क्या करना है, धीरे धीरे कंट्रोल करना है अपने हाथों से और धीरे धीरे उसे जाने देना, राइट। तो दिस विल बी द सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने हाथों को 90 डिग्री पे रखूंगा, राइट। 90 डिग्री पे रखने के बाद क्या होगा, मैं अपने एल्बो को ऐसे सपोर्टेड रखूंगा। उसके बाद मैं अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ घुमाऊंगा।
और मैं फिर से उसे अंदर ले आऊंगा। देखिए मेरा जो एल्बो है वो पूरी तरह से टर्न्ड एल्बो है, और मैंने सिर्फ अपने जो है एल्बो को रोटेट किया है ना, और जो मेरा एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस तरह मैं इस एक्सरसाइज को कर सकता हूँ। तो ये मेरे आर्म की स्ट्रेंथ, शोल्डर की स्ट्रेंथ, चेस्ट का एक्सपेंशन, बैक की एक्सरसाइज, ये कुछ एग्जांपल हैं। इसके एक्सरसाइज की वीडियो वो सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। इसकी एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, तो यू कैन यूज दिस। ये 2-3 एक्सरसाइज है जो मुझे लगता है ब्रीथिंग और उसके साथ में स्ट्रेंथनिंग भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। फिर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग के अंदर सिंपल आपका हो गया काफ स्ट्रेचिंग, हैंड स्ट्रेचिंग, या फिर आपके दोनों शोल्डर्स को पीछे रख के आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट। अपने हाथ को लंबा करके आप हाथ को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ओवरऑल वीकनेस को मिटाने के लिए बहुत जरूरी है। सर एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है, बिल्कुल। आई एम श्योर इट कम्स फ्रॉम सम चेन स्मोकर, कि पोस्ट कोविड स्मोकिंग, वैसे आई स्ट्रांगली से कि एज डॉक्टर आप भी यही बोलेंगे कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्मोकिंग कितनी कर सकते हैं? सर मैं ना ही कहूंगा। अगर पोस्ट कोविड है, अगर कोविड डिटेक्ट हुआ है और अगर वो स्मोक भी करते थे और कोविड डिटेक्ट हो गया है, तो डेफिनेटली कितने का ऑप्शन ही नहीं है। गाइडलाइन जो कहती है कि बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए, वैसे स्मोकिंग जीरो ही होना चाहिए। आइदर इट्स कोविड और नॉन कोविड। पूछते समय भी काफी सोच रहा था कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे पूछूं, बट आई एम श्योर डेफिनेटली आप देखेंगे, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। 80% निमोनिया जो होता है वो उसी की वजह से होता है जो स्मोकर्स हैं, जिनको कोविड डिटेक्ट हुआ है। तो निमोनिया जो हुआ है 80% लोगों को स्मोकर्स को हुआ, मतलब उनको जो को ज्यादा हुआ है वो भर्ती हुए हैं उसकी वजह से। जो हमारी कैटेगरी है जो नॉर्मल है, यानी कि जिनको प्रॉब्लम्स हुई है, ब्रीथिंग इशू है, वो 14% है ओनली, है ना। उसके अंदर 5% है जिसको बहुत ज्यादा थोड़े इशू ज्यादा हुए हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, ऑर्गन फेलियर तक हो गए हैं, और 2% केस ऐसे हैं जिनकी तुरंत डेथ हो गई है। तो मैं अवॉइड ही करूंगा कि ऐसी चीजें, जब आपको अगर सांस ही खींचनी है तो आप हवा ऑक्सीजन खींचे, अगर आपको लगता है तो बेटर है कि अच्छे एनवायरनमेंट में आप हवा खींचे रादर देन द बैड थिंग्स, तो वो आपके लंग्स के लिए बेहतर रहेगी। और हम लोग जल्दी ही कुछ हेल्दी लंग्स जैसा कैंपेन भी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद में इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं, और क्लिनिक तक तो पेशेंट विजिट कर रहे हैं उनको ब्रीथिंग इशू है, जो कि पहले नहीं थे, आइदर वो स्मोकर नॉन स्मोकर बोथ। तो मैं अवॉइड ही करूंगा, मैं ना ही कहूंगा कि ऐसा कुछ भी ना सोचे तो ही बेहतर है। बिल्कुल 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 सर, फॉर द सेल्फ, फॉर द फैमिली, सोसाइटी, सबके लिए अच्छा है। राइट सर। एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट आया है, क्योंकि सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सबके ट्रैवल शेड्यूल्स रहते हैं, ऑडिट्स का टाइम है, सबको जाना है, ट्रैवल कर रहे हैं सर पोस्ट कोविड। और ये क्वेश्चन मेरी तरफ से, ये सर आदर किसी की और की तरफ से नहीं है, कि पोस्ट कोविड how much time I should give to my body before I travel long distance or before I take up some flights, because these are unavoidable things sir, जाना ही पड़ेगा, मतलब we can't ignore client, मतलब ये एक ऐसी चीज है कि हमें करना ही पड़ेगा। तो कब तक मेरा मिनिमम टाइम क्या होना चाहिए कि हम, मतलब आज जैसे मैं रिकवर हो गया तो कितने दिन में ब्रेक दूं बिफोर आई गो फॉर अ लॉन्ग ट्रैवल? Okay, let me tell you one thing. Every person has a different body and a different system. सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं कहता हूं कि आप 5 दिन का रेस्ट दीजिए और 5 दिन के बाद अपना शुरू कीजिए, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है, मल्टीपल है। सपोज एक पेशेंट आता है जिसको सिंपल जुकाम हुआ है, क्या वो कोरोना है या नहीं है, तो दैट कैन बी द वायरल ऑल्सो, राइट। द सेम थिंग है, हर पेशेंट जो है उसके सिम्टम्स नहीं है फिर भी वो पॉजिटिव हो सकता है, सिम्टम होने के बाद भी उसके नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल पैरामीटर हो सकते हैं। तो जो रिकवरी पीरियड भी वैसा का वैसा ही है। तो आप देखिए आपकी बॉडी जो अलाउ कर रही है मूवमेंट, यानी जैसे मैंने बताया, अगर आपने 15-20 मिनट की वॉकिंग शुरू की है, दैट्स इजी, तो यू कैन गो फॉर द हाफ एन आवर वॉक और 3 to 4 किलोमीटर वॉक रेगुलरली, उससे आपका सिस्टम इंप्रूव होगा। फिर उसके बाद आपने जैसे साइकिलिंग है या एरोबिक कैपेसिटी है, सपोज स्विमिंग है ना, अभी हमारे पास समर है तो हम लोग स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो जिनके पास अवेलेबल है, नहीं है तो आपका साइकिलिंग या फिर आपका जो है ट्रेडमिल है वो अवेलेबल है तो वो कर सकते हैं। तो एरोबिक कैपेसिटी और बढ़ जाएगी हमारी। साथ में जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमने डिस्कस की है वो हम कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कुछ हम कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि अगर आप गार्डनिंग करते हैं, घर क्लीन करते हैं, छत से ऊपर नीचे आते जाते हैं, यानी स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं 1-2 बार, तो दे आर मोर बेनिफिशियल। आप बेड पे लेटे रहेंगे, आप अच्छे नहीं होंगे, आपको फिजिकल एक्टिविटी ऐड करना जरूरी है। तो आप इस बात को समझें, आपको ट्रैवल करना है या काम करना है तो आपको पहले अपने घर से ही एक्टिव होना होगा।
तो घर से एक्टिव का मतलब आपने गाड़ी साफ की, अपनी गार्डनिंग की, अपने घर को क्लीन किया, या अपने आपके छत पे ही अपने 10-12 राउंड निकाले, राइट। तो इस तरह के जो हाउस होल्ड वर्क हैं, आप मार्केट गए कुछ लेके आए, तो फिजिकल एक्टिविटी में आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव आए थे नेगेटिव हो गए तो बाहर नहीं जाना है, नहीं, आपको जाना है। सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो आपको पता है, गाइडलाइन वो ध्यान में रखनी है, मास्क पहनना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, और आपको एक्टिविटीज में जल्दी से जल्दी आ जाना है। अगर आप एक्टिविटी में नहीं आते हैं तो उतना ही आप अपने आप को डिले करते रहेंगे। राइट सर, थैंक यू सर। एक फाइनल क्वेश्चन सर, आउट ऑफ कोविड क्वेश्चन है, आई एम श्योर यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज कि सर ये जो बॉडी पॉस्चर है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एकदम सिटिंग जॉब होती है, और अनिल जी अभी तक रात को हमारे 9 बजे तक ऑफिस बैठे हुए हैं, which itself indicates कि the kind of work style we have. Sir, what all we should do work as far as office में हमें क्या changes लाने चाहिए, environment में posture कितना important है, कैसे उसको maintain करें? That's the last question which we have from our side. ओके, तो लेट मी टेल द वन थिंग। अगर मैं सपोज में बैठा हुआ हूँ, आप देखेंगे तो आई थिंक आई लुक गुड। अगर मैं सामने से बैठा हुआ हूँ, अगर मैं ऐसे ही ऐसे बैठ जाता हूँ, राइट, और मैं ऐसे कंप्यूटर पे काम करता रहता हूँ, तो आप देखिए मैं एक तरह से एक अजीब सा शेप बना लिया है मैंने, जिसे मैं अगर मैं साइड से कहूँ तो ये क्लाउड पोस्टर होगा मेरा, है ना। क्लाउड का मतलब है मेरी गर्दन आगे जा रही है, मेरे शोल्डर पूरे के पूरे झुक गए हैं, मेरी बैक पीछे से हंच हो गई है या फिर निकल गई है कुबल के जैसे, और मेरा लोअर बैक है वो पूरा का पूरा फ्लैटन हो गया है। तो मैं लगातार अगर इसी पोजीशन में काम करता रहूंगा, आइदर ऑन द कंप्यूटर और इन द फाइल्स, तो क्या होगा, लगातार प्रॉब्लम्स मेरी नेक पेन, बैक पेन, अपर बैक पेन, हेडेक जो है मेरा, या फिर मेरे हाथों में सूनापन, झंझनाहट, या उस तरह की जो लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम्स है, और इन सीवियर कंडीशन जैसे आपका स्लिप डिस्क है वो भी आ जाएगा। अब मैं अगर इसे कोरिलेट करूं कि आपकी कोविड में सेटिंग और जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसका पोस्चर से क्या लेना देना है, तो मैं आपको पहले भी बताया था कि हमारी रिस्ट के यहाँ पे कुछ मसल्स होती है जिन्हें हम डायफ्राम मसल्स कहते हैं। तो वो क्या करती है, हमारे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का काम करती है, वो हेल्प करती है हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। तो अगर मैं क्लाउड बैठा रहूंगा हमेशा, तो आप खुद ट्राई कीजिए एक बार, आप ऐसे क्लाउड बैठिए और एक गहरी सांस लीजिए, है ना, ऐसे बैठिए क्लाउड और एक सांस लीजिए लंबी, आप नहीं ले पाएंगे। और जैसे ही आप सीधे होते हैं, आप एक गहरी सांस लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी ब्रीथ जो है वो बहुत बेटर हो गई है। तो जो मेरा पोस्चर है, अगर मेरा लगातार क्लाउड रहता है या प्रोलॉन्ग सिटिंग रहती है, तो मेरा रेस्पिरेशन पे इफेक्ट आने ही आने वाला है। तो आप कहेंगे सर मैं तो आपने जो एक्सरसाइज बताई थी वो मैं अच्छे से कर रहा था, और लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं कि कम कम सा लगता है। फिर मैं कहूंगा आप कितने घंटे बैठे रहते हो, आप कहोगे कि सर मैं 10-12 घंटे तो डेली निकाल ही रहा हूँ, अभी काम बहुत ज्यादा है, ऑडिट करनी है, नवंबर इज द लास्ट डे, तो हम सबको बहुत सारा काम करना है। तो लेकिन आप देखिए कि अगर मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मेरे लंग्स दबे हुए हैं, मेरे मसल्स दबी हुई हैं, तो मैं उस चीज को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तो मेरा जो करेक्ट पोस्चर है, यानी एक तो आइडियल चेयर जिसे हम लोग कहते हैं कि आपका जो बैक है वो थोड़ा सपोर्टेड रहे, आइदर बिहाइंड साइड पीछे की तरफ, और जो मेरा लोअर बैक है वो भी सपोर्टेड रहे, और मैं टेबल जो है अपनी उस टेबल के बिल्कुल नियर बाई रहूंगा रादर देन द फार अवे। अगर मैं मेरी टेबल से दूर रहता हूं और मेरे हाथ इस तरह से रहते हैं, तो मैं क्लाउड होने के मेरे चांसेस ज्यादा है। तो मैं अगर मेरी टेबल के पास रहता हूं और बिल्कुल नियर बाई रह के काम करता हूं, तो मेरा जो पोस्चर करेक्ट रहता है, तो उसकी वजह से मुझे रेस्पिरेशन भी इजी रहेगा। एंड द सेकेंड थिंग जो मैं कहना चाहूंगा कि ब्रेक बहुत जरूरी है। तो वी डेवलप्ड एक फॉर्मूला, हम लोगों ने अभी के लिए फॉर्मूला डेवलप किया है, इसे हम लोग 20-20-20 कह रहे हैं, यानी कि 2020 के अंदर इसकी प्रॉब्लम हुई है, तो हमने एक और 20 उसके अंदर ऐड किया है। यानी आप आफ्टर द 20 मिनट क्या करें, 20 सेकेंड का रेस्ट लें, है ना, उसके अंदर अपनी बैक को मुझे सिंपल स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करने के बाद में मुझे पीछे की तरफ इसे खींचना है, एंड आई हैव टू टेक द ब्रीथ इन एंड आउट। ऐसा करने में मुझे 5 सेकंड ही लगेंगे, राइट। मैक्सिमम अगर मैं धीरे हूं या स्लो हूं तो मुझे 7 से 8 सेकंड लगेंगे। उसके बाद मुझे एक बार उठना है और 20 कदम चल के वापस आके बैठ जाना है, राइट। तो मैंने क्या किया, 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड का एक रेस्ट लिया, मैं उसे 20 कदम उठा, सॉरी पहले मैंने क्या किया कि स्ट्रेच किया, फिर मैंने ब्रीथ किया, और उसके बाद 20 क्या है कि मैं 20 कदम चल के आके वापस बैठ गया। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ऐड हो गई है, आप प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं कर रहे हो, आपका पोस्चर आपने बीच में करेक्ट करके ब्रेक कर दिया है, और आपको जो ब्रीथिंग नहीं हो रही थी उसको भी आपने ऐड ऑन कर लिया है। इसके अलावा आपके पास अगर और टाइम है, आप ऐड करना चाहते हैं, तो जो अदर एक्सरसाइज हमने की है उनमें से एक एक एक्सरसाइज हर टाइम पे आप ऐड कर सकते हैं। अब ऐसा कहेंगे कि सर हर 20 मिनट बाद तो याद ही नहीं रहता है,
तो आप क्या करें, नोटिस चिपका लें अपने सामने टेबल पे, दैट विल बी मोर बेटर। और भी नहीं होता है तो टाइम पीरियड अपने हिसाब से सेट कर ले, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 आवर, लेकिन हमें ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। आइदर टू करेक्ट द पोस्चर, आइदर टू टेक द ब्रीथ, आइदर टू टेक द मूवमेंट और द वॉकिंग, क्योंकि मूवमेंट इज द लाइफ। अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है, विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो, और विद द बॉडी एक, बॉडी पेन, और जितनी भी मस्कुलोस्केलेटल ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम जितनी भी है वो सिटिंग की वजह से बढ़ती जाती है। और मैं आपको बता दूं, एक कोट है, ये प्रूवन नहीं है, लेकिन एक कोट है कि सिटिंग इज लाइक स्मोकिंग। जो लोग बैठे रहते हैं वो बैठे ही रहते हैं, उनको मतलब ऐसा लगता है कि बस ऐसे बैठे रहना है। तो जो हैबिचुअल हो जाते हैं वो ऐसा हैबिचुअल होता है, जैसे लोग स्मोकिंग के होते हैं ना, जैसे पीना ही पीना होता है, तो वैसे बैठे ही रहते हैं और काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कब आवर्स गुजर जाते हैं। तो सिटिंग इज लाइक न्यू स्मोकिंग। हमें लगातार एक ही प्रोसेस में नहीं जाना है, हमें इसको ब्रेक करते रहना है चेन को, और वो हमें ध्यान रखना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच।